In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only limited to going through a specified syllabus, but also about gaining knowledge. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sir Patappat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Scientific Approach is run by a group of preeminent teachers, the group being led by Rahul sir. These teachers are the ones who keep the aforementioned points in mind whenever they teach, making sure that their students achieve heights. The main aim of Scientific Approach is helping the children reach their full potential and make the best out of their lives. Rahul sir has helped me reach certainty about what I shall choose when it came to taking a stream in 11th. His guidance helped me change my opinion and outlook on many things and still doesn't fail to do so. It was just for a month that he taught me in the 9th grade, and I knew who I wanted my science teacher to be in order to excel the subject. Even today, the man has simple goals, and to reach them, he makes videos available on YouTube for anyone and everyone so that he can make sure that he's there for every child who needs his help. On the days when we used to go to the coaching, we used to put up hundreds of questions, and the teachers there made sure that our inquisitiveness was satiated. They still have their websites on various social media platforms to help the children in every way possible. So I thank the teachers, especially Rahul sir, for helping me making a path for my future. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का मौसम बहुत ही बेहतरीन, यहाँ बारिश हो रही है एंड आई होप कि वहाँ का भी मौसम थोड़ा बहुत बेहतर तो होगा ही ड्यू टू द मॉनसून। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और स्कूल एग्जाम्स भी शुरू होने वाले होंगे, यूनिट एग्जाम्स। Deepika, good evening. Preeti, good evening. Sweetie Chaudhary, good evening. And Rahul, good evening. Everyone is a warm welcome. आज हम लोगों को जेनेटिक कोड स्टार्ट करना है ना। स्प्लाइसिंग में कोई डाउट तो नहीं किसी को? जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, स्प्लाइसिंग में कोई डाउट है किसी को तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फटाफट मैं बता दे रहा हूं। स्प्लाइसिंग वाज द प्रोसेस ऑफ removal of introns which is actually the non coding gene sequence, है ना। इसके बाद एक वर्ड मेरा छूट गया था बताना आपको, ये लिखना जरूरी है ना। तो इसको लिख लीजिए नोट में ही। ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए टीचर्स पूछ लेते हैं बच्चों से, उसी टॉपिक में है ये, स्प्लाइसिंग का ही पार्ट है। आज की डेट डाल के लिख लीजिएगा। And today's date is, I guess it is 18th of June. Hello Simran, I hope you are fine. Good evening. लिखिए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उसी में लिखना है आपका स्प्लाइसिंग का ही पार्ट है, उसमें लिखना है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट is said to be as hnRNA. Primary transcript is said to be hnRNA. hnRNA और उस hnRNA के ब्रैकेट में लिख लेंगे अनप्रोसेस्ड RNA। hnRNA को ब्रैकेट में लिख लीजिए अनप्रोसेस्ड RNA। ट्रांसक्रिप्शन रिपीट करना है। नोट तो है ना, मैंने लिखवाया हुआ है वीडियो में, तो थोड़ा सा जरा प्रीति की बात को ध्यान में रखें। किसी बच्चे की कोई परेशानी रहनी नहीं चाहिए, बच्ची खत्म होनी चाहिए।
वो भी जब राहुल सर हो, साइंटिफिक सर। ये लिख लिया ना, इसी में कंटिन्यू करके लिख लीजिए, इसी के कंटिन्यूएशन में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑलवेज कंटेन, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट always contains, primary transcript always contains non-coding sequence. Primary transcript always contains non-coding sequence oblique gene and write in a bracket, ब्रैकेट में लिखना है इंट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिखना है इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ब्रैकेट में लिखना है इंट्रॉन्स। लिख लिया? अब इसमें लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना ट्रांसक्रिप्शन में? प्रीति एंड सिमरन, सिर्फ एक्सप्लेन करना है ना? रिस्पॉन्ड करिए जरा फटाफट। रिवीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ये है क्या? तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसक्रिप्शन इज अ बायोमोलिकुलर फिनोमिना थ्रू विच आरएनए सीक्वेंस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे ही कहा कॉरस्पॉन्डिंग, एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब हुआ जो भी डीएनए होगा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हम करेंगे। ओके सिमरन, आई गॉट योर मैसेज, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ध्यान से सुनिएगा बस, ठीक ना? तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? मैंने बताया कि कोई भी डीएनए सीक्वेंस अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन जब बनाता है आरएनए के फॉर्म में, तो दैट इज व्हाट द ट्रांसक्रिप्शन इज, एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस टू प्रोड्यूस आरएनए। अब सिंस देयर इज ए 2 आरएनए, तो rRNA, mRNA and tRNA, all these RNA are produced from DNA dependent RNA polymerase enzyme। थोड़ी बहुत चीजें लिखनी पड़ेगी मुझे। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अब अगर ये 1 है तो rRNA बनाएगा, मैंने बता रखा है, लिखवाया भी है। अगर ये 2 है तो mRNA बनेगा, और अगर ये 3 है तो tRNA बनेगा। क्लियर? अब इस ट्रांसक्रिप्शन में 3 प्रोसेस हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, है ना? शॉर्ट कर दिया, मैं टर्म लिख के छोड़ दिया है, तो परेशान मत होइएगा। इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, they are the 3 different components that actually allow to produce RNA, whether it is mRNA, rRNA or tRNA।
इनिशिएशन का मतलब हो गया कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड अप करेगा प्रोमोटर रीजन पे, और प्रोमोटर रीजन वो पार्ट हो गया डीएनए का, वो सीक्वेंस हो गया, वो कंपोनेंट हो गया जिसको ट्रांसक्राइब करना है, जिसको एमआरएनए बनाना है। जैसे हमारे पास डीएनए है, मान लीजिए ये हमारे पास डीएनए है, ठीक। अब इस डीएनए को ट्रांसक्राइब करना है तो एक इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर। जिसमें आपको नॉर्मल समझना है कि आरएनए पॉलीमरेज विद बाइंड विद अ प्रोमोटर रीजन, और जैसे ही प्रोमोटर रीजन पे बाइंड अप करेगा वो उस डीएनए स्ट्रैंड को, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करेगा एंड इट विल प्रोड्यूसेस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सी है तो जी बनेगा, जी है तो सी बनेगा, टी है तो यू बनेगा, है ना, यूरासिल बनेगा आई गेस। तो व्हाट हैपन इन दैट केस, ये ग्रेजुअली जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो रही है वो उसको प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जैसे ही सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा और टर्मिनल या टर्मिनेटिंग पार्ट पे पहुंचेगा, टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया वो पार्ट जहां पे नॉन फंक्शनल कोडॉन्स होंगे, जहां पे वो सीक्वेंस पाया जाएगा जो किसी भी अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं करता है। रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को वहां से रिमूव कर देगा, निकाल देगा बाहर। अब जब रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाएगा, उससे बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज के निकलते ही जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो वहीं तक रहेगा और वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। फिर एक सवाल पूछा इन्होंने, स्प्लाइसिंग, कोडिंग और नॉन कोडिंग क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। स्प्लाइसिंग, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या मतलब है? ठीक है, देखिए स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नॉन फंक्शनल जीन, नॉन फंक्शनल कोडॉन। प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक आरएनए बनता है, जबकि यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक आरएनए बनता है। ठीक, एज फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए आप, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ये मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 सीक्वेंसेस हैं। तो इसको हमने कहा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? बड़ा लिखना होगा, बड़ा लिखना होगा। यह है हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज HN RNA, जिसको हम हेट्रो न्यूक्लियर RNA कहते हैं। अब जब हम इस HN RNA से इंट्रॉन को रिमूव करेंगे, बाहर करेंगे, तो क्या होगा? एक्सॉन एक्सॉन आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, इंट्रॉन बाहर हो गया। मतलब इंट्रॉन हमारा क्या हो गया? इंट्रॉन इंट्रॉन बाहर हो गया। ठीक, तो इस रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को हम क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को क्या कहते हैं हम? स्प्लाइसिंग। मतलब जब नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन फंक्शनल जीन जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, उस जीन सीक्वेंस को जब हम HN RNA से बाहर करेंगे, निकाल दिया बाहर, बेदखल कर दिया इसको घर से, तो जो रह गया एक्सॉन की सीक्वेंस,
ठीक है, इसको हम कोडिंग सीक्वेंस कहेंगे। कोडिंग क्यों कहा? क्योंकि ये किसी न किसी मैसेज को, किसी न किसी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इंट्रॉन हमारा किसी भी मैसेज को कंट्रोल नहीं, ये कोडिंग सीक्वेंस हो गया। सिंपल था। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। मतलब सिंपली एचएनआरएनए से जब हम एमआरएनए बनाएंगे, मतलब ये था हमारा एचएनआरएनए, और जैसे ही सिर्फ और एक्सॉन बच गया, तो ये एमआरएनए या आरआरएनए या टीआरएनए डिपेंड करता है कि आपने एंजाइम कौन सा लिया है, पॉलीमरेज 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, ये उस पे निर्भर करेगा। कोई डाउट इसमें किसी को? सिमरन, इज इट क्लियर नाउ? स्प्लाइसिंग समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल राइट है सिमरन। मैंने भी आपको क्या 2 टर्म लिखवाए, मैंने आपको अभी अभी दिखाया भी, शायद मैंने वर्ड यूज किया पिछली क्लास में, मैंने आपको लिखवाया भी है 2 वर्ड, पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड मोनोसिस्ट्रोनिक। क्या लिखवाया था? पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड मोनोसिस्ट्रोनिक। मैं फिर लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक, ठीक। मोनोसिस्ट्रोनिक जो आरएनए होगा वो होता है हमारा यूकैरियोट्स में, और जो पॉली होता है वो हमारा होता है प्रो। पी फॉर पॉली, पी फॉर प्रोकैरियोट, ये याद रखना है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब है, पॉलीसिस्ट्रोनिक में नो इंट्रॉन। जिस आरएनए में इंट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, वहां डायरेक्टली मैसेज जो है वो गवर्न होता है। वहां देयर इज अ नो यूज ऑफ प्रोसेसिंग, देयर इज अ नो यूज ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो यही कारण है कि प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए, यूकैरियोट कंसिस्ट ऑफ मोनोसिस्ट्रोनिक। ये एनसीईआरटी में है, आपके लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है टेक्निकली अगर समझिए, तो टेक्निकल वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है, चलिए क्लियर हो गया ना? चलिए कोई नहीं, टेक्निकल वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है पॉलीसिस्ट्रोनिक में, इसमें बहुत सारे अलग अलग जीन सीक्वेंसेस हैं, नहीं सॉरी, इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन एक ही जीन सीक्वेंस से कोड किया जाता है। लेकिन मोनोसिस्ट्रोनिक में हर एक मैसेज के लिए अलग अलग कोडॉन्स हैं। मोनो मतलब सिंगल, सिस्टोन मतलब पॉलीपेप्टाइड कोड करने वाला सीक्वेंस, ठीक। मतलब एक सिर्फ एक ही को इन्फॉर्म करेगा, मतलब एक मैसेज जो होगा, एक जेनेटिक कोड जो होगा, वो सिंपली सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को गवर्न करता है। मतलब हर एक मैसेज के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन होती हैं, अलग अलग जीन सीक्वेंस होती हैं, अलग अलग कोडिंग सीक्वेंस होती हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। लेकिन चूंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसके लिए सारे मैसेज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही इन्फॉर्म कर लेता है, उसको कोड कर देता है, तभी वो इसको कहा पॉलीसिस्ट्रोनिक। नहीं, दिस इज नॉट राइट स्टेटमेंट सिमरन। आपने लिखा है एमआरएनए से जब एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बनाते हैं, इंट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो फिर भी यूकैरियोट्स में इंट्रॉन क्यों होते हैं? बेटा सिंपल सी बात हो गई, आपने सब्जी में से एक बार छिलका निकाल दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगली बार जो हाथ से सब्जी खरीद के ला रहे में छिलके नहीं होंगे। ये मतलब समझ में आया? जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा यूकैरियोट्स में, ठीक, तो सिंपल सी बात हो गई,
एक ट्रांसक्रिप्शन होने में इंट्रॉन्स का आना लाजमी है। अब उसके लिए कैसे, उसको भी समझेंगे। वो तो सिंपल उसका आंसर है, अभी हम पढ़ाने वाले भी थे। आज का टॉपिक हमारा था जेनेटिक कोड, कि जब भी कोड करेगा, है ना, जब भी कोड करेगा, देखिए वी हैव GUA, नहीं सॉरी, UGA, UAG, UAA, इसके बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? जरा सोच के बताइए, ये है क्या? एक और मैं ऊपर लिख दूं, AUG, बताइए, थोड़ा देखें आप लोग का जनरल नॉलेज, बताइए जरा। ये 4 सीक्वेंस हमने लिखे हैं, इन चारों का मतलब क्या है बताइए? सिमरन, प्रीति, राहुल, स्वीटी एंड दीपिका। नहीं पता, सिमरन को नहीं पता। एंड रेस्ट ऑफ यू, रेस्ट ऑफ यू, दीपिका, कैन यू? प्रीति, यू आर स्टिल देयर, यू हैव नॉट आंसर्ड एनीवन। सोचिए जरा। राहुल, आप भी बचे हैं। स्वीटी, चलिए नहीं पता है तो भी हम आगे बताएं। हेडिंग लिखिए जेनेटिक कोड, हेडिंग लिखिए जेनेटिक कोड। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, हेडिंग है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड गिवन बाय जॉर्ज गैमो। एनसीईआरटी में है आपका ये साइंटिस्ट। स्वीटी को नहीं पता, प्रीति लिटिल बिट आप सही हो, अमाइनो एसिड सर कह सकती हो, सही है, नॉट 100% करेक्ट बट एटलीस्ट यू हैव यू नो टेल समथिंग, ठीक है। लिख लिया जेनेटिक कोड? चलिए, और किसी का रिप्लाई नहीं है। अब इसमें है क्या? जॉर्ज गैमो ने कॉन्सेप्ट दिया। हम लोग नॉर्मली बार बार यही बात कह रहे हैं कि मैसेज कन्वे होता है, डीएनए मैसेज कैरी करता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। आप बच्चों के दिमाग में ये सवाल तो आता है, ये क्यूरियोसिटी तो होती है कि ऐसा है क्या? क्या कोई बैठ के वहां मैसेज टाइप करता है, या कोई उसमें लिखा होता है कि मैन्युस्क्रिप्ट बन रहा है, कोई टाइप कर रहा है और मैसेज गवर्न कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल। देयर आर कोडिंग सीक्वेंसेस। कोडिंग सीक्वेंसेस में जॉर्ज गैमो ने कहा, लिखिए, ही सजेस्टेड दैट, लिखिए, ही सजेस्टेड दैट, अब देखिए स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया यहां पे। He suggested that genetic code is triplet, and genetic code is triplet, and genetic code is triplet, and 4 nitrogenous base, and 4 nitrogenous base, 4 nitrogenous base is used Preeti have found the answer, right? Finally, Preeti, you have found the answer na somewhere. Very smart, very smart, good. क्या लिखवाया था? 4 nitrogenous base code for certain amino acids,
लिखिए हेडिंग, फिर हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। सैलिएंट फीचर ऑफ, सैलिएंट फीचर, SALIENT, सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। पहला, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, ये बोर्ड में आता है, इसको स्टार बना लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 99.9% चांस है कि आपका ये क्वेश्चन एक बोर्ड में रहता है, बोर्ड एग्जाम में, तो लिख लीजिए जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, genetic code is universal, genetic code is universal, genetic code is universal, genetic code is universal, that is one genetic code, one genetic code, one genetic code represents only one amino acid, only one amino acids. Next point, one amino acid, one amino acid can be, one amino acid can be coded by, one amino acid can be coded by more than one triplet codon. मैं फास्ट तो नहीं हूं ना बेटा? My speed is quite enough to give you time to write, I hope, है ना? छूट तो नहीं रहा किसी को? ओके, clear? One amino acid can be coded by more than one triplet codon, more than one triplet codon. फिर लिखिएगा all 20 amino acid, all 20 amino acid all 20 amino acid, all 20 amino acid is coded by, is coded by 61 triplet codon, 61 ट्रिपलेट कोडॉन। अब देखिए ये आया कहां से, कैसे बना, अब ये सीखेंगे। 5 मार्क्स में तो खैर नहीं आया कभी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन दिस टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यही वो कंपोनेंट है जो मैसेज को कन्वे करता है ना। अब कैसे बना ये देखिए। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे UCAG, UCAG is responsible for, UCAG are 4 nitrogenous base, 4 nitrogenous bases responsible for forming triplet codon। अब देखिए
पहले तो हम एक बक्सा डब्बा बनाएं। ठीक है, बॉक्स बनाएं। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं? ये हो गया U C A G, U C A G, इधर हो गया U C A G, U C A G, U C A G, U C A G। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, एंड दिस वन विल बी थर्ड। सेकेंड। अब ये है क्या? तो देखिए, जब भी ट्रिपलेट कोडॉन बनाएंगे तो U U U, U U C, U U A, एंड फाइनली U U G। इसी तरह U C U, U C C, U C A, U C G, U A U, U A C, U A A, U A G, U G U। देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? U G, U U G, U G C, U G A, U G G, और इसी तरह टोटल हमारा क्या है? 64 कोडॉन बन जाएगा। इसको फटाफट जरा बनाइए, डन करिए। ये समझ में आ गया कैसे बनना है ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो। ये बना लेंगे सब 64। 4 4 8 4 12 4 16, 16 है और फिर 4 बॉक्सेस हैं, तो 16 4 जा 64 कोडॉन। जरा फटाफट बनाइए। देखिए जरा बनाया मैंने। अब भी बताऊंगा प्रीति, आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। ये कॉपी कर लीजिए। यहां पे आप ये लिख सकते हैं
पॉली यू, पॉली ए, पॉली सी, पॉली जी का क्या नाम है ना? जो पॉली यू है वो है हमारा फिनाइल एलानिन। ठीक, देखिए उसके बाद जो हमारा पॉली ए है वो है हमारा लाइसीन। ठीक है, और जो पॉली सी है, पॉली सी को हम लोग बोलते हैं प्रोलीन। ठीक है, और जो पॉली जी है दैट इज ग्लाइसीन। उसके बाद हमारा यूएजी, यूजीए, यूएजी, यूजीए एंड यूएए, ये क्या था? यूएजी, यूजीए एंड यूएए, ये जो तीन हैं इसको हम टर्मिनेटिंग कोडॉन कहते हैं। ये हमारा है डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। तो अब 64 में जो तीन है वो कोड कर ही नहीं रहा, तो हमारा 61 बच गया। इसको हमने कह दिया कोडिंग सीक्वेंस। अभी 61 में जो हमारा AUG है, AUG, ये दो काम करता है। पहला काम है इसका इनिशिएशन और दूसरा काम है कोड फॉर मेथियोनिन। ये याद रखना है, ये 2 नंबर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राइट द डुअल फंक्शन ऑफ AUG। ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देखिएगा, यू विल सी व्हाट इज द डुअल फंक्शन ऑफ AUG एंड व्हाई AUG इज यूनिक अमंग 61 ट्रिपलेट कोडॉन। ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन लिख लीजिए तो याद रहेगा आपको। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए वाई AUG इज यूनिक, why AUG is unique among 61 triplet codon। why AUG is unique among 61 codon। तो वहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, वहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए। दोनों के आंसर सेम है, ये बोर्ड में आया है कई बार। राइट द डुअल फंक्शन ऑफ AUG, 2 नंबर में आता है। राइट डुअल फंक्शन ऑफ AUG, और दोनों के आंसर सेम है। यू कैन राइट दिस एज वेल। इस पूरे के पूरे 61 अमाइनो एसिड में इकलौता है ये जो 2 फंक्शन कर रहा है, इसके 2 रोल हैं। ठीक ना, क्लियर? ये ग्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को बेटा? मुझे तो दिख रहा है बट लाइट है।
ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, या मैं दोबारा लिख दूं? प्रीति, एयूजी के बारे में लिखिए, एयूजी के बारे में समझिए। एयूजी के दो फंक्शन है, एक तो ये ट्रांसक्रिप्शन के समय ये इनिशिएशन का काम करता है, ठीक, मतलब एक तरह से आप कह लीजिए ये चाबी है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन, इट ऑल्सो कोड फॉर सम अमाइनो एसिड विच इज मेथियोनिन, मतलब एयूजी मेथियोनिन को भी कोड करता है जो एक अमाइनो एसिड्स है। इसीलिए बोला गया कि जो एयूजी है वो डुअल पर्पस ट्रिपलेट कोडॉन है, और ये कैरेक्टर इस पूरे के पूरे 61 अमाइनो मतलब कोडॉन में है तो 64, और 64 में से 61 ही कोड कर रहा है, ठीक है। तो इस 61 में जो यूनिक बिहेवियर है वो एयूजी का है, जो दो तरह के काम कर रहा है, दो तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन नाउ? इज इट क्लियर? प्रीति, सिमरन, दीपिका, राहुल, इसको जरा कॉपी करिए। इज इट ऑल डन? ये आपको दिख रहा है या नहीं? मैं दोबारा लिखूं ग्रीन वाला? हाँ, तो फिर इंट्रॉन, इंट्रॉन इन्हीं सीक्वेंसेस से बनते हैं बेटा। ये जो देख रहे हैं ना चार नॉन कोडिंग ट्रिपलेट कोडॉन, जो ये जो है यूए, यूएजी, यूजीए, ये वही है शैतान बच्चा। ट्रिपलेट कोडॉन डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, इसी को हम नॉन सेंस कोडॉन भी कहते हैं। हाँ, ये भी लिख लीजिए, सेंस एंड नॉन सेंस वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, कई बुक्स में आपको मिलेंगी। ऑल्सो कॉल्ड नॉन सेंस कोडॉन, नॉन सेंस कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन को हम नॉन सेंस कोडॉन कहते हैं। एंड दीज आर द प्रोबेबली सीक्वेंसेस विच डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड एंड दे आर प्रेजेंट इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एज इंट्रॉन। क्लियर नाउ? ये मुझे आप लोग बता नहीं रहे हो मुझे एक बार भी, ये बेटा लिख रहे हो ना आप लोग, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोग कुछ बताते नहीं हो बेटा, ये गलत बात है। UAA, UGA, UAG, ये है हमारा टर्मिनेटिंग कोडॉन, does not code for any amino acid, 64 minus 3 is equals to 61, इसी को हम कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, बता दिया करिए भाई। चलिए, आई होप यू हैव ऑल डन, सबने लिख लिया?
ओके अभिषेक, ओके दीपिका, बट आई वॉज नॉट। हाँ, रेकॉन और म्यूटॉन भी यही है क्या? नहीं 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 नहीं। रेकॉन एंड न्यूटॉन्स आर सम ऑफ द पेयर ऑफ द सीक्वेंस। देखिए सिंपल है, जैसे चाल, जैसे आप ऐसे समझिए इसको बिल्कुल लेमन भाषा में, जिस तरह से आलू से हम सिर्फ सब्जी नहीं बना सकते, हम उसकी भुजिया भी बना सकते हैं, उसका हम पराठा भी बना सकते हैं, है ना, उसके हम पकौड़े भी बना सकते हैं। तो उसी तरह से ये जीन सीक्वेंस अलग अलग कॉम्बिनेशन में अगर पाया जा रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि दी सीक्वेंस कैन बी यूज्ड एज अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कि अगर लगातार ये चारों हैं एक साथ, अगर एक ही फ्रेगमेंट में यहां से लेके यहां तक, पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है, तो दे में लीड्स टू म्यूटेशन। हो सकता है वो म्यूटॉन कहलाएगा, हो सकता है वो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करेगा। तो दिस इज व्हाट द कंडीशन। ठीक है, तो म्यूटॉन जो है हमारा, और जो रेकॉन है वो स्पेसिफिक कंपोनेंट है जीन का, फ्रेगमेंट का, जो म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन में, ये वैसे आएगा नहीं, ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट में बच्चे पढ़ते हैं, बीएससी की क्लास में पढ़ते हैं, जब आप हायर स्टडीज करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी करेंगे या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करेंगे, तो देयर यू विल स्टडी दिस। अब उस दिन चूंकि मैं लिखवा रहा था, तो फ्लो में मैं लिखाता चला गया। ठीक है, अब चूंकि मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को ही पढ़ाता हूं, तो ओके, मतलब जब 3-4 कोड मिलेंगे तो रेकॉन, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि 3 और 4 कोडॉन्स मिलेंगे, तो मतलब यही कोडॉन सीक्वेंसेस का कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि दे हैव अ कैपेसिटी टू म्यूटेट। क्योंकि म्यूटेशन इज नॉट समथिंग विच कैन बी डन, सॉरी, विच इज कॉमन फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है, दे मे टुक प्लेस ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन जीन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव रोट, जो लिखा है ना आपने बेटा सिमरन, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि रेकॉन एंड म्यूटॉन्स आल्सो एग्जिस्ट दैट मे बी the responsible for mutation and recombination of the gene during crossing over. Is it clear now to everyone? Is it clear now? Okay, Simran done. Deepika, Abhishek, Preeti, you must also, and Sweetie Chaudhary जी, आप भी थोड़ा लिखते रहिए, कभी कभी लिखते रहना चाहिए। मैं इरेज कर दूं इसको। ये लिख लिया सबने? पॉली यू, ये याद कर लीजिएगा, पॉली यू फिनाइलेलानिन, पॉली ए लाइसिन, पॉली सी प्रोलीन, पॉली जी ग्लाइसिन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, जनरल नॉलेज। नीट के एग्जाम में आया है, विच आर द फॉलोइंग कोड्स फॉर फिनाइलेलानिन, और बच्चा सोच रहा है कि सर ये क्या 64 के 64 मुझे याद रखने पड़ेंगे। एक चीज और, इन तीनों के भी नाम हैं, यूएजी, यूजीए, यूएए, एम्बर, ऑपल, ऑकर। ये रह गया, देखिए यही होता है, ये रह गया, लिख लीजिए। एम्बर, AMBRE, ऑपल एंड ऑकर, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन तीनों के बारे में बताया था। ठीक है, एम्बर, ऑपल, ऑकर। ठीक है, तो इन तीनों लोगों ने बताया था इनके बारे में कि दे आर द टर्मिनेटिंग कोडॉन which never code for any amino acid and they are called nonsense codon। तो इन तीनों को क्रेडिट दे दिया कि लो भैया, आपको ये नाम दे दे रहे हैं हम, खुशी मनाओ, जलेबी बांटो।
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए म्यूटेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए म्यूटेशन। और म्यूटेशन मैं आपको बता चुका हूं, बस यहां पे दो नई चीजें जाननी है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आप में से कौन बताएगा व्हाट इज म्यूटेशन? ये मैंने पढ़ाया है आपको 2 बार, बताइए व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज म्यूटेशन? Deepika, can you tell? And Abhishek, you too. Just try to give the answer of this question. What is mutation? What is mutation? Preeti, I am waiting for your response. What is mutation? ये 2-3 बार मैंने डिस्कस किया है, बस 2 नए टर्म्स आज पढ़ने हैं। पॉइंट म्यूटेशन में, म्यूटेशन में 2 तरह का म्यूटेशन, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फिर लिखिए। उसके बाद पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, चेंज इन, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, चेंज इन सिंगल जीन सीक्वेंस, चेंज इन सिंगल जीन सीक्वेंस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मेरी मेहनत सफल हो रही है ना, आपकी मेहनत भी, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। चेंज इन सिंगल जीन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। एग्जांपल में लिख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया। क्या हुआ था, याद आ रहा है ना, यूएजी बिकम यूजीए, है ना? लिख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। दैट इज चेंज, कंटिन्यू करके लिखिएगा, दैट इज चेंज इन सिंगल बेस पेयर, दैट इज चेंज इन सिंगल बेस पेयर सीक्वेंस इन डीएनए, चेंज इन सिंगल बेस पेयर सीक्वेंस, चेंज इन सिंगल बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ डीएनए, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट लिखेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये क्या है भाई? तो देखिए, वर्ड खुद को डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, लिखेंगे देयर मे बी इंसर्शन और डिलीशन ऑफ, देयर मे बी इंसर्शन और डिलीशन ऑफ, there may be insertion or deletion of 3 or more base pairs, insertion or deletion of 3 or
more base pairs, 3 or more base pairs फुल स्टॉप। जैसे राम हैज बैग, ठीक, तो ये एक मैसेज हो गया ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में। अब इसमें मान लीजिए ये तीनों चला गया, गायब हो गया, ये डिलीट हुआ, और दूसरी तरफ से यहां मैं लिख दे रहा हूं राम डिलीट हो गया है और अपनी जगह से हट के कहीं और शिफ्ट हो गया, ठीक है, मतलब ये पार्ट शिफ्ट होके यहां चला गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्टेड। 3 बेस पेयर्स हैं और इन तीनों बेस पेयर्स में शिफ्टिंग हो गई, तो जो मैसेज था राम हैज अ बैग, ये मैसेज कुछ अब मीनिंगलेस हो गया, कोई मीनिंग नहीं, राम बैग हैज, कोई मीनिंग बनेगा? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब ही होता है कि 3 या 3 से ज्यादा बेस पेयर जब एक डिलीट हो जाए या अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो देयर इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स प्रूफ दैट ट्रिपलेट कोडॉन, it provides proof for triplet codon it provides proofs for triplet codon that it carries some information. It carries some information. ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब ये कि यही ट्रिपलेट कोडॉन था जो एक मैसेज बना रहा है, राम हैज बैग, लेकिन शिफ्ट हुआ पूरा का पूरा ये 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर और ये बना दिया राम बैग हैज, तो ये जो मैसेज था अब ये किसी काम का नहीं रह गया। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द ग्रामेटिकल एरर ऑफ योर डीएनए। ठीक है, डन? क्लियर है सबको? देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं? डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट किसी को भी? I am waiting for your response. प्रीति, सिमरन, दीपिका, अभिषेक, स्वीटी चौधरी। वेरी गुड, अभिषेक ने लिख दिया क्लियर है, सिमरन ने भी कह दिया कोई डाउट नहीं, प्रीति आराम कर रही है और दीपिका सोच रही है क्या लिखें, है ना? फटाफट आंसर करा करिए। नेक्स्ट लिखेंगे टॉपिक अपना ट्रांसलेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे ट्रांसलेशन। कौन बताएगा? ये भी मैंने थोड़ा सा बता रखा है आप लोगों को। ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है ये? व्हाट इज ट्रांसलेशन? थोड़ा आंसर करिए तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, जैसे भी पीछे भी जस्ट आया था जब आपने बताया मुझे। थैंक यू प्रीति एंड दीपिका, अभिषेक, सिमरन। प्रीति चौधरी सो गई लगता है, उनका रिस्पांस नहीं आया अभी तक। उठ जाओ बेटा, नींद से जागो मोहन प्यारे। स्वीटी चौधरी, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड येट। आरएनए से प्रोटीन बनाना, बिल्कुल सही। ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करना मतलब भाई डीएनए से पहले हमने आरएनए बनाया और आरएनए में वही सारी सीक्वेंसेस अवेलेबल थी जो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में थी। अब वो जो इंफॉर्मेशन है अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में, उस इंफॉर्मेशन को आखिरी स्टेप तक पहुंचाना है प्रोटीन के फॉर्म में, है ना। मतलब सिंपल सी बात हो गई, सिंपल सा फंडा हो गया कि जो भी चीजें डीएनए ने आरएनए को दी है मैसेज के फॉर्म में, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में, कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में, वो सभी मैसेज कैसे गवर्न होंगे, वो सभी मैसेज क्या बना रहा है और क्या बनना है या क्या बनेगा, उन सभी मैसेज को हम प्रोटीन का बनना कहते हैं। एंड दैट प्रोटीन will be formed from the RNA molecule, and that biomolecular method is called as translation. Clear? लिख लीजिए इसमें डैश देके ट्रांसलेशन के बारे में। प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक्सक्यूज मी, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, process of polymerization, process of polymerization, process of polymerization of amino acid into protein. Very good, Preeti, Deepika, Simran, you all have given a correct answer. आप लोगों को डॉक्टर बना देना है एनी हाउ, कम से कम 2-3 बच्चों को। खूब मेहनत करिए, खाइए, मस्ती से पढ़िए, बिल्कुल दिल लगा के। हम लोग भी यहाँ आपके लिए बिल्कुल लगे हैं। गर्मी के मौसम में भी देखिए हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, पसीना आ रहा है लेकिन फिर भी लगे हुए हैं आपके सहयोग के लिए। तो प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ आरएनए, by the help of RNA. This process takes place in cytoplasm. This process takes place in cytoplasm. This process takes place in cytoplasm. फुल स्टॉप क्या लिखेंगे? इट हैज फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलोइंग स्टेप्स। पहला, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। लिखिए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। लिख रहे हैं ना आप लोग, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। फिर दूसरा हो गया इनिशिएशन, तीसरा elongation, and fourth one
टर्मिनेशन। ठीक है, अब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है क्या? तो ऐसे है कि जिस भी अमाइनो एसिड को, पहले तो आप ये समझिए थोड़ा सा कि ये हमारा एमआरएनए है। जैसे ही ट्रांसलेशन की होनी होती है, ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, तो जो हमारा राइबोसोम है, ठीक है, एमआरएनए पे अटैच हो जाता है, ठीक है, राइबोसोम। ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट, पी साइट, ई साइट। ए, पी एंड ई। पहले समझ लीजिए। ये हमारा टीआरएनए है। तो होता क्या है, सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए से जुड़ता है, अटैच होता है, जिसको हम लोग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। ठीक, एंड दैट चार्ज टीआरएनए, या उसी को हम लोग कह देते हैं अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए। क्या कहते हैं? अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए, या इसी को हम अमाइनो एसाइलेशन भी कहते हैं। कुछ बुक में आपको ये मिलेगा, है ना, अमीनो एसाइलेशन। मतलब अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए एटीपी की मदद से, ठीक है, अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए बना लेता है। ठीक है, अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए। और हमारा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है एडीपी, ये बाहर हो जाए। ठीक, दिस इज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये टीआरएनए आ गया सबसे पहले कहां? ए साइट पे, इनिशिएशन शुरू हो गया। ठीक, ये मूव करेगा राइबोसोम। तो जब ये यहां पहुंचेगा तो ये जो टीआरएनए वो कहां जाएगा? पी साइट पे आ जाएगा। जैसे ही पी साइट पे आएगा तो ये जो प्लेस है ये क्या हो गया? वेकेंट हो गया। तो दूसरा टीआरएनए यहां आ गया, फिर आगे मूव हुआ, फिर ये कहां चला आया? अब यहां से हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और अमाइनो एसिड यहां से एक जो अमाइनो एसिड है वो बाहर आ जाएगा। फिर ग्रेजुअली ये चलाएगा हमारा टी साइड पे, तब तक फिर दूसरा अमाइनो एसिड भी अटैच हो जाएगा। एक टीआरएनए यहां ऑलरेडी रहेगा और दूसरा हमारा यहां रहेगा। ठीक, और ये काम प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अमाइनो एसिड हमारा पीछे की तरफ पॉलीपेप्टाइड, ई फॉर एग्जिट साइट, मैं लिख दे रहा हूं। ए का मतलब हो गया अमाइनो एसिड साइट, पी का मतलब हो गया पेप्टाइड साइट, और ई का मतलब हो गया एग्जिट साइट। ठीक, जैसे जैसे टीआरएनए आएगा और जैसे इस मैसेंजर आरएनए पे कोई ट्रिपलेट कोडॉन आ जाएगा जो किसी भी सीक्वेंस को कोड नहीं करेगा, मतलब टर्मिनेटिंग कोडॉन, वही यूएजी, यूजीए, यूएए में से कोई भी, तो वहीं से ये जो टीआरएनए है रिमूव हो जाएगा और जितनी भी अमाइनो एसिड्स बनी होंगी वो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में टर्मिनेशन के बाद प्रोड्यूस हो जाएंगी। सो कॉपी करिए, कॉपी करिए। इसको जरा समझना बहुत जरूरी है, इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा समझना है केयरफुली, तभी आपको याद भी होगा या आपके डाउट्स क्लियर होंगे।
रिपीट कर दें। हैं? चलिए, तुम्हें अंदाजा था क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा है भी ऐसा, समझिएगा ध्यान से, फिर बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो पहला स्टेप है हमारा ट्रांसलेशन में चार्जिंग। कई बुक या मैक्सिमम बुक ये इसको स्टेप में इंक्लूड नहीं करती है, लेकिन हमने एक जगह इसलिए कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। टीआरएनए में अमीनो एसिड्स का अटैच होना इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मतलब एवरी टाइम, चूंकि वर्ड क्या है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मतलब वो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करेगा, लेके आएगा, कैरी करेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा एमआरएनए है, ये जो लाइन देख रहे हैं लंबी सी, दिस इज व्हाट द एमआरएनए इज। जब ट्रांसलेशन होना होगा तो राइबोसोम इसके ऊपर आके, जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का ऊपर, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो नीचे आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। एवरी राइबोसोम हैव अ 3 साइट। एवरी राइबोसोम हैज 3 साइट, A site, P site and E site. A for amino acid site, P for peptide site and E for exit site. यहां मैं लिख देता हूं। Component of राइबोसोम या साइट्स ऑफ राइबोसोम। ठीक, अब ये 3 साइट्स हैं। एक टीआरएनए चार्ज हो गया, मतलब अमीनो एसिड से अटैच हो गया, प्रोसेस इनिशिएट हो गया वहीं पे। टीआरएनए आ गया कहां? ए साइट पे। जैसे ये साइट पे आया, ये राइबोसोम फिर आगे की तरफ मूव करेगा, और ये राइबोसोम यहां आ गया, तब तक फिर दूसरा राइबोसोम आ गया। ठीक, तो ये जो टीआरएनए है अब कहां पहुंचा? पी साइट पे। ठीक, फिर तब तक दूसरा टीआरएनए भी यहां अटैच हो जाएगा, फिर आगे बढ़ा तो ये पी, जो टीआरएनए था पी साइट पे, वो पहुंच गया ई साइट पे। और तब तक क्या हुआ, जो 2 अमीनो एसिड्स यहां अटैच प्रेजेंट थे, वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा और ये बाहर निकलना शुरू होगा। और ये प्रक्रिया या प्रोसेस ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी अंटिल द टर्मिनेशन रीजन, या टर्मिनल, जो टर्मिनेशन पार्ट है, जो एंटीकोडॉन है, टर्मिनेटिंग पार्ट यहां पे जैसे ही पहुंचेगा, तो चूंकि वहां वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड तो कर नहीं रहा, तो ये हमारा यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा नहीं। और जब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो जितने भी पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बने होंगे तब तक, टिल द टाइम, वो ट्रांसलेशन में बाहर हो जाएंगे, और जो भी वो प्रोटीन बनेगा वो मैसेज को, ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? इज इट क्लियर? इसको कॉपी करके भी समझ में आ जाएगा, जब लिखवाऊंगा तो और बच्चा कुछ जो डाउट है वो क्लियर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखिए, इन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसिड, in charging of tRNA, amino acid binds with tRNA with the help of ATP. Excuse me. Binds with tRNA, और ये तो लिख ही लिया होगा, जब टीआरएनए से ए अटैच होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इन एलोंगेशन नहीं सॉरी, कंटिन्यू करके लिखिएगा, दिस चार्ज टीआरएनए, कंटिन्यू करके लिखिएगा, दिस चार्ज टीआरएनए विल बाइंड्स
will come at not comes, sorry, will come at a site of ribosomal unit, a site of ribosomal unit. A site of ribosomal unit. ठीक है. In next line में, in next step, ribosome moves and another tRNA joins at a site, and another tRNA मतलब charged tRNA joins at a site comma, meanwhile previous tRNA reaches to E site. Meanwhile previous tRNA reaches to E site, and in between this step peptide bonds are formed, and in between this step peptide bonds are formed. Peptide bonds are formed. नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, दिस process continues till non-coding sequence. This process continues till non-coding / terminating codon found on mRNA. Which terminate the process of translation. Which terminate the process of translation. Which terminate the process of translation. And I hope now it is completely clear to everyone. Is it clear to everyone? रिस्पॉन्ड करिए. प्रीति, सिमरन, अभिषेक, दीपिका, स्वीटी चौधरी. स्वीटी चौधरी तो सो गई ऐसा लग रहा है. I am waiting for a response. I hope you have all done the things on the board. वेरी गुड. प्रीति डन, क्लियर. दीपिका का मैसेज नहीं आया. सिर्फ प्रीति हैज डन ना. सिमरन, यू आर स्टिल वेटिंग. चलिए.
आई होप सबका हो गया है, इसको इरेज करें। दीपिका डन, वेरी गुड। सिमरन, व्हाट अबाउट यू? एंड अभिषेक? स्वीटी चौधरी को थोड़ा जगा दीजिए आप लोग, पानी वानी डालिए उनके सर पे। जागो मोहन प्यारे, कॉफी वॉफी बना के दीजिए, थक गई है बेचारी, सुबह से पढ़ते पढ़ते थक गई। चौधरी जी सब खैरियत? आपको हम लोग याद कर रहे हैं बेसब्री से, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है ना। चलिए खैर, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं अभी तक? हम लोगों ने जो डिस्कस किया मैं फिर बताऊं, हम लोगों ने आज स्प्लाइसिंग को कंप्लीट किया है, जेनेटिक कोड बताया, जेनेटिक कोड में हमने आपको ट्रिपलेट कोडॉन्स बताए, नॉनसेंस कोडॉन बताए, टर्मिनेटिंग कोडॉन बताए, एंड देन वी हैव डन ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए जरा मुझसे, और नहीं है तो हम फिर आगे बढ़े। हम लोग बढ़े, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन, हेडिंग लिखेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर। ये पढ़ा दिया था क्या आप लोगों को मैंने? बड़ा कंफ्यूजन रहता है मुझे, ये थोड़ी सी समस्या है मेरे साथ। एक दिन में क्लास 12th की ये चौथी बैच है। अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन ब्रैकेट में यूटीआर, ये करा दिया था क्या? लिखिए, सम अदर सीक्वेंसेस ऑब्लिक रीजन, some other sequences oblique reason which is not going to translate it, which is not going to translate, which is not going to translate it on mRNA, which is not going to translate on mRNA, are which is not going to translate it on mRNA are called as UTR, full stop, are called as UTR, full stop. These sequences are mostly present, these sequences are mostly present at 5' end, at 5' end जिसको हम कहते हैं, at 5' end बिफोर स्टार्ट कोडॉन। और स्टार्ट कोडॉन किसको कहते हैं? AUG को, बिफोर स्टार्ट कोडॉन, बिफोर स्टार्ट कोडॉन, and at 3' end, and at 3' end, and at 3' end after stop codon, at 3' end after stop codon, after stop codon। मतलब हमें यूटीआर का रीजन पहले से पता है, ये प्री डिफाइंड प्लेस है कि अगर आपको यूटीआर को ढूंढना है तो 5' एंड पे
AUG से पहले आप जो भी सीक्वेंसेस हैं वो सभी अनट्रांसलेटेड होंगे, क्योंकि वो प्रोमोटर से पहले है, तो उसका कोई ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, तो ट्रांसलेट भी नहीं करेगा। वही टर्मिनेशन के बाद जो सीक्वेंस यूटीआर के टर्मिनल पार्ट के बाद में होगा, तो प्रोसेस तो वही खत्म हो गया स्टॉप कोडॉन के पास ही, तो वो भी ट्रांसक्राइब नहीं करेगा। ये कॉमन है, अंडरस्टूड है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, दे आर हाईली रिक्वायर्ड, मतलब यूटीआर लिखिए, दे आर हाईली रिक्वायर्ड, they are highly required for efficient, they are highly required, they are highly required for efficient, translation process, efficient translation process। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक हॉल्ट है, एक बस स्टैंड है कि यात्री या बस चल रही है बहुत लंबी दूरी तक, उसको थोड़ी देर रुकना है, आराम करना है, गाड़ी के इंजन को ठंडा करना है, यात्रियों को थोड़ा सा फ्रेश होना है, फिर फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मतलब ये एक तरह का हॉल्ट है, आप ऐसे समझ सकते हैं ठेठ भाषा में, जो ट्रांसलेशन को और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, ठीक है। मतलब अब अगर प्रोसेस को एफिशिएंट होना है तो थकान थोड़ी दूर भी होनी होगी ना, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? तो ये था हमारा यूटीआर। हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए रेगुलेशन ऑफ, हेडिंग लिखिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हेडिंग लिखिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये टॉपिक हम लोग अगले टर्न में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आज का पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है पूछना है, डाउटफुल है कहीं से भी, तो आप पूछ लीजिए, फिर क्लास को हम एंड करें, खत्म करें। देख लीजिए फिर बताइए। ट्रांसलेशन को एक बार घर पे आज ही पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी, क्योंकि ट्रांसलेशन एक लौता ऐसा टॉपिक है जो जिसमें हमें थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो आपको समझनी होगी। जो ए साइट, पी साइट और ई साइट मैंने लिखवाया है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये दूसरी बुक्स में है, नीट के बुक में है, आकाश, एलन, इन सब के कंटेंट में आपको मिलेगा। एंड दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम, इसलिए मैंने लिखवा दिया है ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी कि कैसे कैसे 3 साइट्स में मूव करता है टीआरएनए, एंड फर्दर इट विल लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। चलिए फटाफट जरा जवाब दे दीजिए। शुड वी एंड द क्लास? कोई डाउट किसी को? शब्बा खैर, गुड इवनिंग करें क्या? कोई डाउट नहीं? स्वीटी को जगा दीजिएगा, सो रही है बहुत देर से। कोई रिप्लाई नहीं है उसका, बहुत आधे घंटे से आई गेस। प्रीति, सिमरन, अभिषेक, दीपिका, दीपिका पूनिया फ्रॉम राजस्थान, सिमरन फ्रॉम लखनऊ। चलिए फिर ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, मजे करिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड इवनिंग, शब्बा खैर, जय श्री राम। आदाब अर्ज, ये भी एक रह गया था। सत श्री अकाल।